اس نے قدیم زمانے میں زبولون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، اور آخری زمانے میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سائے کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ تو نے قوم کو بڑھایا، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا۔ وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے چوہے اور ان کے کندھے کے لٹ اور ان پر ظلم کرنے والے کے عصا کو ایسا توڑا ہے جیسے مدیان کے دن میں کیا تھا، کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلاح اور خون آلودہ کپڑے جلانے کے لیے آگ کا ایندھن ہوں گے۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قدوس، ہمارے زندہ عاضل اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے لیے، کیونکہ تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے فضل کیا اور ہمیں آج اس مقدس دن میں اکٹھے ہونے کا موقع دیا ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ تو اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشیوں کو منانے کے لیے ہمیں موقع دیتا ہے۔ زندگی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، صحت و تندرستی کے لیے شکر کرتے ہیں۔ تمام لوگوں کے لیے جو یہاں پر موجود ہیں تیری شکر گزاری کرتے ہیں، جو آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہیں ان کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے خداوند کہ تو ہمارے درمیان موجود ہے۔ خداوند اپنی حضوری سے، اپنی موجودگی سے ہم میں سے ہر ایک کو برکت دے، اور خداوند ہم اپنے آپ کو تیرے تابع کرتے ہیں۔ خدا پاک تو ہماری مدد و رہنمائی کر، ہمارے خیال اور دھیان تیری طرف لگیں، دنوی سوچیں اور فکریں یسوع کے نام سے جاتی رہیں۔ خداوند ہمارے ایمان کو مضبوط کر، ہمارے دلوں کو خوشی سے بھر دے، تاکہ خداوند زندگی میں سے ساری پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ یسوع کے نام سے جاتی رہیں۔ اور آج جب ہم تیرے بیٹے یسوع جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کی پیدائش کی خوشی کو مناتے ہیں، تو یہ خوشی خداوند ہماری زندگی میں حقیقی خوشی اور اطمینان بھرنے کا باعث بنے۔ خداوند جہاں بھی لوگ تیری عبادت کے لیے جمع ہیں تو اپنے لوگوں کی حفاظت کر، دہشت گردی سے اور شر پسند عناصر سے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھ۔ تیرا فضل، تیرا رحم ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو، یسوع کے نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔
हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। हम सब खड़े होंगे और अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा काबिल मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 190 गाएंगे। आहा यसु आया, ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। गीत नंबर 190, गीत नंबर 190। तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस दुआ में प्रोफेसर अजीम अल-फौनस साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। हम खुदावंद का शुक्र करेंगे कि खुदावंद ने आज हमें ये मौका दिया है कि हम यीशु की पैदाइश की खुशी को मिलकर इकट्ठे मना सकें। इस मौके के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए हम इस जगह के लिए भी शुक्रगुजारी करेंगे जहाँ पर हम इकट्ठे आज़ादी के साथ महफूज होकर खुदावंद की इबादत कर सकते हैं। इस जगह के लिए एफसी कॉलेज के लिए, एफसी कॉलेज की इंतज़ामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद ने बरकत दे और खुदावंद के जलाल के लिए, दुआही के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में मसीहों के लिए दुआ करेंगे कि दुनिया में जहाँ भी आलमी कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी को मना रही है,
खुदावंद उनके वसीले से यीशु की गवाही देने का काम करता रहे और अपने लोगों की खुदावंद हिफाजत भी करे। हम अपने मुल्क के लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे मुल्क को बरकत दे, हमारे मुल्क में इस्तेहकाम हो और तरक्की आए। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और प्रोफेसर अजीम साहब इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। खुदावंद पाक खुदा, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ इस वक्त के लिए जिसमें तूने ये फजल बख्शा है कि हम सब मिलकर तेरे बेटे यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी को मना सकें। खुदावंद पाक खुदा, तेरा शुक्र बजा लाता हूँ कि तूने अपनी मोहब्बत को अपने बेटे की सूरत में जाहिर किया और ऐ खुदा, तूने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि हम उस पर ईमान लाने के वसीले से हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहर सकें। मैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ और ऐ खुदावंद तुझसे मिन्नत करता हूँ कि आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग इबादत में हैं और ऐ खुदावंद इस खुशी में शरीक हो रहे हैं, ऐ खुदावंद उन सब जगहों पर तेरी कुदरत बढ़ जाए और ऐ खुदावंद सबको अपनी पनाह में ले ले। ऐ खुदावंद तेरी हुजूरी ना सिर्फ उन जगहों पर बल्कि लोगों की ज़िंदगी में कसरत से आए और वो तमाम ज़िंदगियाँ जिन्होंने अभी तक तेरे बेटे को ऐ खुदावंद शख्सी तौर पर बहसीयत निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, वो भी तेरे बेटे को निजात दहिंदा कबूल करें और ऐ खुदावंद हमेशा की ज़िंदगी के लिए तैयार करें अपने आप को। ऐ खुदावंद तू हमें फजल बख्श कि ऐ खुदावंद हम तुझ में कायम रहें और फलदार मसीही ज़िंदगी बसर करें और ऐ खुदावंद हम दूसरों के लिए भी बाइस बरकत ठहरें। इसी तरह ऐ खुदावंद मैं इस जगह के लिए जिसमें हम सब मौजूद हैं और मिलकर तेरे नाम की हम्दो तारीफ कर रहे हैं, तमजीद कर रहे हैं, तेरे कलाम को सीख रहे हैं, इस जगह को के लिए तेरा शुक्र बजा लाता हूँ और यीशु नाम से बरकत देता हूँ कि इस जगह के दरवाजे, इस इदारे के दरवाजे इसी तरह से खुले रहे। इस इदारे के लिए तेरा शुक्र बजा लाता हूँ कि तूने अपने नाम को जलाल देने के लिए इस इदारे को कायम रखा हुआ है। इधर आए खुदावंद काम करने वाले जितने भी आए खुदावंद अफसरान बाला हैं जिनके कंट्रोल में ये जगह है, आए खुदावंद उनको हिकमत अता कर, बरकत अता कर, ताकि आए खुदावंद वो इस इदारे को तेरे नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करते रहें। आज खुसूसी तौर पर अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ, आए खुदावंद इसमें हर तरह का अमन और सलामती रहे और हर तरह की अबतरी यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे। आए खुदावंद मोहब्बत की फिजा इस मुल्क में फैली रहे ताकि आए खुदावंद आपस में लोग मोहब्बत और जगानगत से रहें और एक दूसरे को कबूल करें। खुदावंद पाक खुदा, इसी तरह पूरी दुनिया के हालात को लेकर तेरे सामने आता हूँ और तुझसे मिन्नत करता हूँ कि ऐ खुदावंद इस पूरी दुनिया में तेरे बेटे ने ऐ खुदावंद अमन का पैगाम फैलाया। इस दुनिया में तेरे बेटे यीशु के नाम से अमन मांग लेता हूँ, अमन और सलामती आए और तेरे बेटे की हुकूमत हो, राज हो और ऐ खुदावंद शैतान का जोर इस दुनिया से टूटे और ऐ खुदावंद तमाम लोग तेरे बेटे को कबूल करें और ऐ खुदावंद नजात पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से एक दफ़ा फिर आज के दिन को हम सब के लिए बाइस बरकत और मुबारक ठहराना, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 157 गाएंगे, 157, आया यीशु यार साढ़े पास। गीत नंबर 157 और इसके हम 5 मिसरे गाएंगे। आओ दलेर हुन सबे बनिए, यहाँ तक हम गाएंगे। गीत नंबर 157, 157। Yesu
आप में से आज क्रिसमस है, कौन कौन खुश है? सारे खुश हैं। तो फिर गीत तो आप में से आधे गा रहे हैं। ये गीत खुशी का गीत है। ये गीत जो है ना, गीत नंबर 157, ये हमारे क्रिसमस का जो एसेंस है उसको बयान करता है, जिसको हम आज मनाने के लिए इकट्ठे हैं, खुश हैं, तैयार होकर आए हैं, पूरी तैयारी के साथ, खुशी के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ हमने क्रिसमस नाइट सेलिब्रेट की है और आज हम इबादत के लिए जमा हैं। तो आधे लोग क्यों गाएं? सारे खुशी के साथ गाएं। सारों के लिए यीशु आया, आधों के लिए नहीं आया। सारों के लिए यीशु आया है, हम सबका वो निजात दहिंदा है। इसलिए सभी खुशी के साथ, खुश चेहरों के साथ, उदासी के साथ नहीं। तो बहुत से लोगों को देखकर उदास चुप करके खड़े हैं, पादरी साहब का बैठने के लिए कहते। खुशी के साथ हम दोबारा 2 मिसरे गाएंगे, जन्म खुदा दे पुत्र लेता। ये हमारा ईमान है कि खुदा का बेटा जो है वो आज के दिन पैदा होगा। इस मिसरे को गाएंगे और फिर उसके बाद उसके आने का जो मकसद क्या है, पता हुन कमजोर होयो अबलीसा भेजा तेरा भजिया सपा। ये 2 मिसरे हम गाएंगे। यीशु इंसान बनकर, खुदा इंसान बनकर दुनिया में आया और उसने आकर अबलीस को शिकस्त दी। ये 2 मिसरे हम सभी मिलकर खुशी के साथ, मुस्कुराते हंसते हुए, दिल खुशी से भरे हुए हैं, तो खुशी के साथ, जोश के साथ हम ये 2 मिसरे दोबारा से गाएंगे। Yeah.
साइड्स पे बैठे हुए हो प्लीज़ ज़रा दरमियान की जो कुर्सियाँ खाली हैं उन पर हो जाएं, ताकि जो साइड बाद में लोग आ रहे हैं वो साइड्स पर बैठ जाएं। तशरीफ रखें। आए हम एक बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाइया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि ईमानदार जब इकट्ठे होते हैं और खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है उसके नाम से दुआ मांगते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम फतह पाते हैं। आए हम सभी अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, जिन्होंने दरख्वास्त की है कि कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआ करें, उन सबको खुदावंद की हुजूरी में याद करें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे यीशु के लिए शुक्र करते हैं जिसे तूने वो नाम बख्शा है जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद यीशु नाम के लिए, जिसमें हम बरकत पाते हैं, जिसमें हम फतह पाते हैं और बड़े ईमान के साथ खुदावंद हम यहाँ पर मौजूद हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि तू अपनी हजूरी में खुदावंद हमें बरकत दे। तेरी हजूरी में खुदावंद हम मौजूद हैं, तू हमें से हर एक को छू दे। हमारी हर एक जिस्मानी कमजोरी, बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। तू छू खुदावंद, तू मौजज़ा कर। खुदावंद हम आज तेरे घर से, तेरी हजूरी से मौजज़े के साथ वापस जाना चाहते हैं। खुदावंद तू छू हर एक बीमारी को, तकलीफ को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं। हम अपने इख्तियार से नहीं, यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, क्योंकि यीशु के नाम में इख्तियार है, यीशु के नाम में कुव्वत है, यीशु के नाम में कुदरत है। इसलिए यीशु के नाम से हर एक शैतानी कुव्वत को, शैतानी तासीर को, हर एक बीमारी को हुक्म देते हैं कि हमारे जिस्म से दूर हो। खुदावंद तुम्हें छू और शिफा दे। हमारी जिंदगी में बड़ा मौजज़ा हो, हमारे खानदानों में खुदावंद तेरे फजल के वसीले से शिफा हो, रूहानी शिफा हो, जिस्मानी शिफा का काम हो। खानदान का एक एक फर्द यीशु के नाम की कुदरत से पाक ठहरे। बीमारियां, तकलीफें, जिस्मानी दर्द यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद खास तौर पर हम अपनी कलीसिया के उन तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने दरख्वास्त की है कि हम मिलकर उनके लिए दुआ करें। हम मुतफिक होते हैं खुदावंद, एक दिल होकर उन्हें तेरी हुजूरी में ले आते हैं। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन शबनम के लिए, बहन फौजिया के लिए, मिसेस जेरी आख्तर, मिसेस नजीर जियाई और मिसेस सरवर के लिए, बेटी जेरुशा के लिए, बहन जेब के लिए। इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन बीना के लिए, भाई लेज़ली के लिए। इसी तरह से भाई अगस्टीन के लिए दुआ करते हैं, भाई शहजाद और भाई नदीम जॉर्ज के लिए, भाई आसफ रशीद के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन राखल के लिए और अली अफनान और अली अकान के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इन सबको तू छू और खुदावंद शिफा बख्श दे। इनकी जिंदगी में मौजज़ा हो, तेरी कुदरत ज़ाहिर हो, तेरे फजल के वसीले से खुदावंद शिफा का काम हो। इसी तरह खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बे औलाद जोड़े हैं, यीशु के नाम में उनके लिए औलाद की बरकत मांगते हैं। तूने छू दे खुदावंद, तेरे फजल के वसीले से सब की जिंदगी में तेरी कुदरत का तजर्बा मांगते हैं। खुदावंद तूने छू और औलाद की नेमत बख्श दे। हम सबको खुदावंद बीमारियों से, वबाओं से, सर्दी की शिद्दत से महफूज रख। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम ख्वाए से गीत सुनेंगे, क्रिसमस के हवाले से गीत है और ज़रूर आप भी ख्वाए के साथ मिलकर इस गीत को गाएं ताकि हम क्रिसमस की खुशियों को मिलकर मना सकें।
राजा यीशु पैदा हुआ, राजाओं का राजा यीशु पैदा हुआ। एलानात हैं। हमारी जो नए साल की मिडनाइट सर्विस है, शुक्रगुजारी की इबादत है, वो 31 दिसंबर की रात को 11 बजे चैपल में होगी। हम साल की आखिरी जो इबादत है, शुक्रगुजारी की जो इबादत है, वो हम चैपल में करेंगे, चर्च में। फिर उसके बाद जो नए साल की इबादत है, वो हम यहाँ पर सुबह 10 बजे 1 जनवरी को, 1 जनवरी को यहाँ पर करेंगे। इसलिए नए साल की इबादत जो मेन सर्विस है वो यहीं पर हम हॉल में करेंगे, लेकिन जो शुक्रगुजारी की रात की हमारी इबादत है नए साल की, वो हम चैपल में करेंगे। उसके लिए ज़रूर जगहों को याद रखें। और इसके साथ ही हमारा जो नए साल की इबादत है उसमें अशाए रबानी की इबादत भी होगी। हम साल का आगाज़ खुदावंद की मेज़ पर आने से और खुदावंद यीशु मसीह का अपना निजात दहिंदा कबूल करते हुए, उसके हुक्म दिए हुए हुक्म को मानते हुए, जो उसने अपने शागिर्दों को और अपने मानने वाले ईमानदारों को दिया, उसको पूरा करते हुए करेंगे। इसलिए शायरबानी के लिए खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए अपने आप को तैयार करके आएँ। उसके साथ ही हमारा जो क्रिसमस का जो कैलेंडर है, जो हर साल हम आप लोगों को देते हैं, तो चर्च की तरफ से हम हर साल एक गिफ्ट के तौर पर देते हैं। इस दफ़ा हमने थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी, जो उसकी 50% कॉस्ट भी नहीं है, हमने आपको एक छोटा सा उसके लिए हदिया जो या कीमत है वो आपके लिए रखी है। आपको इबादत के बाद कैलेंडर्स मिलेंगे और उसके लिए 20 रुपये जो है वो उसकी कीमत है। हालांकि हमने जो उसको बनवाया है उसकी कॉस्ट 70 रुपये है, लेकिन आप लोगों के लिए हमने गिफ्ट के तौर पर उसको रखा है। लेकिन ये 20 रुपये हमने कॉस्ट इसलिए रखी है, कीमत इसलिए रखी है, ताकि आप लोग जब लें तो उसको आप कीमत अदा करके लेंगे तो आप सभी के लिए फिर उस पर मुमकिन हो सकेगा कि सभी ले सकें। पिछली दफ़ा जब हमने कैलेंडर छपवाए, बनवाए, तो वो नए साल से पहले ख़त्म हो गए थे। तो बहुत से लोग जो हैं वो अपने अजीज़ों के लिए भी लेते हैं गिफ्ट के तौर पर। हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन वो बहुत से लोग फिर रह जाते हैं।
इसलिए हमने छोटा सा आपके लिए एक कीमत रखी है, छोटी सी कीमत है। वो आप बाहर जब जाएंगे चर्च के बाद तो आप लोग 20 रुपये देकर एक कैलेंडर जो है वो ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, और वो आप लोगों के लिए चर्च की तरफ से गिफ्ट है, लेकिन सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पर। इस वक्त हम खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले गीत गाएंगे। गीत है जी जलाल हो मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। हम सब खड़े होंगे और खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले गीत गाएंगे और खुदावंद के कलाम के लिए खुद को तैयार करेंगे।
तेरी पूजा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। तेरी पूजा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। साथ तेरे वफादार सवाल हो, साथ तेरे वफादार सवाल हो। कोई टूटना कोई भी भला हो, कोई टूटना कोई भी भला हो। और खुदावंद के कलाम की तिलावत को सुनेंगे। नए अहदनामे में से मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक। The Gospel according to John, chapter 1, verses 1 to 14। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब, पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक। और इसी की तिलावत करने में हमारे रहनुमाई मिसेस डॉक्टर लुबना में सहदा करेंगी। खुदावंद के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब, पहली आयत से 14 आयत तक। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम आमौजूद हुआ, जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तशरीफ रखें। मेरी दरख्वास्त है कि आपके दरमियान में अगर कोई सीट खाली है तो उसको फिल कर लें, और दूसरा अगर प्लीज़ छोटे बच्चे हैं तो उनको अपनी गोद में कर लें। हम और चेयर्स का इंतज़ाम कर लें, हमारे अशर्स जो है वो ला रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो ज़रूर इस बात को देखें। बड़े जो हैं वो अपने बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं उनको अपने साथ गोद में कर लें, ताकि वो लोगों को बैठने का मौका मिल सके। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए, क्योंकि तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह का नाम ही सब नामों से आला है, और आज हम तेरे बेटे यीशु की पैदाइश की खुशी को मना रहे हैं। दुआ करते हैं खुदावंद अब हम जब तेरे कलाम को सुनने वाले हैं, हम अपने दिलों को तेरे ताबे करते हैं। खुदा पाक करूँ तो हमें मसा कर, मामूर कर, तो हमें छू, हमारे ईमान को मजबूत कर, हमारे ख्याल और ध्यान तेरी तरफ लगे, संजीदगी की रूह आ जाए, दुनियावी सोचें और फिक्रें यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद अपने आप को भी तेरे ताबे करता हूँ, तू मेरी रहनुमाई कर। खुदा पाक करूँ तू बोल और अपने लोगों से कलाम कर। खुदावंद तू अपने पाक रूह की मदद के वसीले से मुझे इस्तेमाल कर, यीशु के नाम में आमीन।
क्रिसमस पूरी दुनिया में बड़ी खुशी के साथ, जोश के साथ, वलवले के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार को मसीही भी मनाते हैं और गैर मसीही भी मनाते हैं। बहुत से लोग जो खुदावंद यीशु मसीह को बतौर निजात दहिंदा कबूल नहीं करते, वो भी क्रिसमस की खुशियों में शामिल होते हैं। ये एक आलमी त्यौहार बन चुका है और पूरी दुनिया में इसको बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्रिसमस मसीहों के लिए क्या है और क्रिसमस का मकसद क्या है? खुदा ने इस दिन को इंसानों के लिए क्यों ठहराया है और क्यों खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा है? ये अहम सवाल है और खास तौर पर मसीही लोगों के लिए यह जानना बड़ा ज़रूरी है। हमारे लिए इससे वाकिफ होना बड़ा ज़रूरी है कि आज के दिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी को मना रहे हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश क्या पैगाम लाती है। कलाम मुकद्दस में से आज जो हवाला आपके सामने तिलावत किया गया है, इसमें मुकद्दस यूहन्ना ने मसीही ईमान की बुनियाद को पेश किया है। मसीही ईमान की बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह का खुदा का जिस्म अख्तियार करके इस दुनिया में आना है। और ये आयात जो आपके सामने तिलावत की गई है, ये खुदा के इलाही ज़ात के जिस्म अख्तियार करने को जाहिर करती हैं। और खास तौर पर 14वीं आयत जो है उसको आज हम मरकजी आयत के तौर पर देखेंगे। 14वीं आयत में लिखा है, कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। ये आयत तजस्सुम मसीह को पेश करती है, यानी खुदा के जिस्म अख्तियार करने को। इनकारनेशन का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता है और इस लफ्ज को मसीही ईमान का बुनियादी नुक्ता कहा जाता है, जिसमें इलाही ज़ात जिस्म में आ गई। एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड है या फिर डीटी इन फ्लैश, यानी इलाही ज़ात का जिस्म में होना। और दुनिया की तारीख के लिए ये लफ्ज बहुत अहमियत अख्तियार कर गया है और कहते हैं कि जुबान दानी की तारीख में इससे बड़ा लफ्ज कोई नहीं कि खुदा जो है वो इंसान बन जाए। इनकारनेशन या तजस्सुम का जो लफ्ज है, इसका कोई सानी नहीं है। और एक स्कॉलर, मसीही आलम C.S. लुईस कहते हैं कि ये एक इतना बड़ा मौजज़ा है कि जब खुदा ने जिस्म अख्तियार किया, ये इतना बड़ा मौजज़ा है कि दुनिया के तमाम मौजज़ात की तैयारी और दुनिया के तमाम मौजज़ात से बड़ा मौजज़ा है। और तमाम मौजज़ात जो दुनिया में बड़े कहलाते हैं, उनकी बुनियाद ये मौजज़ा है जिसमें खुदा जिस्म अख्तियार करके इस दुनिया में आया, इस दुनिया में रहा और उसने वो मौजज़े किए जो कोई इंसान कर नहीं सकता। मौसमों पर इख्तियार, पानी पर चलना, मुर्दों को जिंदा करना, जन्म के अंधों को शिफा देना और कोड़ियों को शिफा देना, ये तमाम वो मौजज़े हैं जो कोई इंसान कर नहीं सकता। और इन तमाम मौजज़ों की बुनियाद तजस्सुम मसीह है। खुदावंद यीशु मसीह का जिस्म अख्तियार करना, इलाही ज़ात का जिस्म में आना, इन तमाम मौजज़ों की बुनियाद बना। और आज हम जो क्रिसमस मना रहे हैं वो इस मौजज़े की खुशी मना रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इंसान बना, खुदा इंसान बना, उसने जिस्म अख्तियार किया। और खुदा का कलाम पौलुस रसूल कहते हैं, अलूहियत की सारी मामूरी जो है उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, यानी इलाही ज़ात उसमें है, खुदा उसमें है, यीशु मसीह खुदा है और खुदा ने जिस्म अख्तियार किया। और इसमें खासतौर पर आज हम तजस्सुम के हवाले से देखते हैं कि तजस्सुम, खुदा का जिस्म अख्तियार करना, इस दुनिया के लिए क्या बरकत लाया है। इस दुनिया के लिए इस लफ्ज में खुशखबरी क्या है, भेद क्या है इस लफ्ज का।
اور یہ لفظ تجسم جو ہے ہمارے لیے اور دنیا کے انسانوں کے لیے کیا برکت لاتا ہے، اس میں چند ہم نکات کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلا جو فضل خدا کی جو برکت ہے تجسم کے وسیلے سے وہ یہ ہے کہ تجسم خدا کو ظاہر کرتی ہے۔ تجسم کے وسیلے سے انسان خدا کو دیکھنے اور جاننے کے قابل ہوا ہے۔ پرانے عہد نامے میں اور اس کے علاوہ خدا کے لوگوں کے علاوہ بھی دنیا کے انسانوں کے لیے یہ ایک تجسس رہا ہے کہ وہ خدا کو جانے اور خدا کو دیکھیں۔ خدا کیسا ہے، خدا کی فطرت کیا ہے، خدا کی قدرت کیا ہے، خدا کا اختیار کیا ہے، خدا کس طرح سے کام کرتا ہے، ان سب کو تجسم میں ہم خداوند یسوع مسیح میں دیکھتے ہیں۔ یعنی تجسم خدا کو ظاہر کرتا ہے، تجسم انسانوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ خدا کو دیکھ سکے۔ پرانے عہد نامے میں خدا کے ظہور کی، خدا کے ظاہر ہونے کی مختلف باتیں، مختلف واقعات ہمیں نظر آتے ہیں۔ جب خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، کبھی خدا نے جلتی جھاڑی میں، مشل میں، کبھی خدا نے آواز کے ذریعے سے، بادل میں اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ مختلف صورتوں میں خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ تھیافنی ہے، یعنی خدا کا ظہور، ظاہر ہونا خدا کا۔ لیکن جو تجسم ہے اس کے لیے ایک مختلف لفظ ہے۔ یہ مختلف چیزوں میں، مختلف علامتوں کے ذریعے سے خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہا۔ لیکن جو تجسم ہے، جو کرسمس ہے، جو یسوع کی پیدائش ہے، وہ جس تجسم کو ظاہر کرتی ہے وہ تھیافنی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک اور لفظ ہے، وہ ہے تھیاسٹائی، یعنی کسی چیز کی ایکچوئل فزیکل سائٹ، یعنی کسی کو حقیقی طور پر دیکھنا۔ پہلے پرانے عہد نامے میں جو خدا کے ظہور ہیں وہ مختلف طرح سے، مختلف طریقوں سے، آواز کے ذریعے سے، اشکال کے ذریعے سے، مختلف علامات کے ذریعے سے، رویا کے ذریعے سے، خواب کے ذریعے سے ظاہر ہوتے رہے۔ لیکن تجسم میں خدا نے ایکچوئل سائٹ کے ذریعے سے ظاہر کیا اپنے آپ کو، حقیقی طور پر انسان خدا کو دیکھ سکا کہ خدا کیسا ہے، خدا کی فطرت کیسی ہے، خدا کیا چاہتا ہے، خدا کیا کرتا ہے، خدا کس طرح سے کام کرتا ہے، خدا کیا کر سکتا ہے۔ حقیقی طور پر انسان خدا کو یسوع مسیح میں دیکھ سکا، اور یہ تجسم کے وسیلے سے ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو ظاہر کیا، اور اس کے وسیلے سے خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ انسان کا تجسس جو آج بھی قائم ہے، جو یسوع کو نہیں جانتے وہ خدا کو بھی نہیں جان سکتے، لیکن تجسم کے وسیلے سے انسانوں کے لیے موقع ہے، پوری دنیا کے لیے موقع ہے کہ وہ یسوع کے وسیلے سے خدا کو دیکھ سکے اور جان سکے۔ جن کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ خدا کیسا ہے، جن کے ذہنوں میں یہ سوچ ہے، تجسس ہے، یہ مسٹری ہے کہ خدا کیسا ہے، وہ تجسم پر ایمان لا کر، یسوع کے اس دنیا میں آنے پر کہ خدا اس دنیا میں آیا، اس پر ایمان لا کر خدا کو جان سکتے ہیں۔ اور یہ تجسم کی برکت ہے، یہ انکارنیشن کی برکت ہے۔ اسی لیے نئی ہسٹورینز نے کہا اور زبان دانی کے ماہروں نے کہا کہ یہ زبان دانی میں سب سے بڑا لفظ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان خدا کو دیکھ سکتا ہے، خدا کو جان سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور تجسم کی برکت یہ ہے کہ تجسم کے ذریعے سے خدا انسانوں کے درمیان آ گیا، اور یہاں پر 14ویں آیت میں لکھا ہے وہ ہمارے درمیان رہا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ dwell among us، یعنی یہ جو dwell کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے کسی چیز کے درمیان رہنا، درمیان خیمے میں رہنا، اور یہ ہمیں
पुराने अहदनामे में खरूज की किताब की तरफ ले जाता है। खरूज की किताब और उसका 40वां बाब हमें एक बनी इसराइल की कौमी जिंदगी में अहम वाक़े का बयान देता है। खरूज की किताब का 40वां बाब आखिरी बाब है खरूज की किताब का। और खुदा ने मुकद्दस मूसा को हुक्म दिया कि वो खैमा इज्तिमा बनाए, खुदा का मस्कन बनाए। और जब खुदा के मस्कन को बनाने का काम तकमील को पहुंचा तो 40वां बाब बयान करता है कि खुदा ने मूसा को कहा कि खुदा के मस्कन को खड़ा कर। और जो कुछ खुदा ने बताया, तफसीर बताई, जो तरतीब बताई, उसके मुताबिक मूसा ने खुदा के मस्कन को खड़ा किया और उस काम को मुकम्मल किया जो जिम्मेदारी खुदा ने मूसा को दी थी कि उसका मस्कन खड़ा हो जाए और उसमें खुदा की हजूरी हो, उसमें खुदा अपने लोगों के दरमियान हो। और 40वें बाब का इख्तिताम जो है 34वीं आयत और 35वीं आयत में लिखा है कि जब 33वीं आयत का इख्तिताम बताता है कि यूं मूसा ने उस काम को खत्म किया, यानी जब उसने मस्कन को खड़ा करने का और उसमें जिस तरह से खुदा ने हुक्म दिया था कि ये आपने करना है, उसको जब मूसा ने तकमील को पहुंचाया तो 34वीं आयत में लिखा है तब खैमा इज्तिमा पर अबर छा गया और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर हो गया और मूसा खैमा इज्तिमा में दाखिल न हो सका क्योंकि वो अबर उस पर ठहरा हुआ था और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर था। खरूज की किताब का 40वां बाब खुदा की हजूरी को आदमियों के दरमियान, उसके लोगों के दरमियान बयान करता है कि जब मस्कन खड़ा हो गया तो खुदा का जलाल उसके बीच में आ गया, खुदा का अबर वहां पर ठहर गया और मूसा वहां पर खड़ा ना हो सका क्योंकि वहां पर खुदा की हजूरी थी, खुदा का जलाल था, उसकी कुदरत, उसका जलाल, उसकी शान और शौकत वहां पर मौजूद थी और इंसान वहां पर ठहर ना सका। मुकद्दस मूसा जिससे खुदा सरीहन बातें करता था वो भी खुदा के जलाल को, खुदा की हजूरी को उसमें ठहर ना सका, उसमें मौजूद न रह सका, उसकी ताब न ला सका। इसके बाद जब हिजकिय्याह की किताब को देखते हैं, हिजकिय्याह की किताब का 10वां बाब जो है वो एक और वाक़े को बयान करता है जिसमें खुदा का जलाल जो है वो अपने लोगों के दरमियान से उठ गया। हमें खरूज की किताब बताती है कि खुदा अपने लोगों के दरमियान सुकूनत करता है, उसका खेमा, उसकी हजूरी, उसका जलाल, उसकी कुदरत अपने लोगों के दरमियान और उनके साथ। लेकिन जब हम हिजकिय्याह की किताब पढ़ते हैं और मैं खैमा इज्तिमा के और बनी इसराइल के डेरों के बारे में पढ़ रहा था, जब वो मिस्र से निकले तो एक मुसन्निफ बयान करते हैं कि 12 कबाइल के 3 अलग-अलग डेरे जो हैं वो खैमा इज्तिमा या खुदा के मस्कन के इर्द गिर्द चारों कोनों में खड़े किए जाते थे और दरमियान में खुदा का मस्कन था, खुदा की हजूरी दरमियान में और चारों कोनों पर 3 कबाइल के डेरे जो हैं वो लगाए जाते थे ताकि बनी इसराइल ये एहसास कर सके कि सारी कौम के दरमियान खुदा का जलाल है, खुदा अपने लोगों के दरमियान है। और जब हम हिजकिय्याह की किताब का 10वां बाब देखते हैं तो हिजकिय्याह की किताब का 10वां बाब और उसके बाद 11वां बाब खुदा के जलाल के उठ जाने का जिक्र करता है। लोगों का गुनाह, लोगों का खुदा को नाराज करना, लोगों की नापाकी, लोगों का और खुदाओं को मानना, इस बात को उनकी जिंदगी में, बनी इसराइल की जिंदगी में ले आया कि खुदा का जलाल जो है वो उठ जाता है और बनी इसराइल की कौम और बादशाहों की असीरी में चली जाती है। हिजकिय्याह की किताब का 10वां बाब और 11वां बाब इन बातों को बयान करता है कि आखिरकार वो खुदा का जलाल और वो कुदरत जो उसके लोगों के दरमियान में थी और उसके इर्द गिर्द लोग थे, फिर हैकल जब बनी और हैकल में खुदा का जलाल पाक तरीन मकाम पर ठहरा था, वो उठ गया, खुदा अपने लोगों से जुदा हो गया। ये इस बात की अलामत थी। लेकिन नए अहदनामे में यीशु के वसीले से यूहन्ना कहता है
کہ وہ فضل اور سچائی سے معمول ہو کر ہمارے کہاں رہا؟ درمیان رہا. وہی خدا کا جلال، وہی خدا کی حضوری جو انسان کے گناہ کے باعث اٹھ گئی اور خدا اپنے لوگوں کے درمیان سے چلا گیا. یسوع کے وسیلے سے، تجسم کے وسیلے سے یہ ممکن ہوا کہ خدا دوبارہ سے انسانوں کے درمیان آئے، خدا دوبارہ سے انسانوں کے ساتھ رہے. اور وہ لوگ، وہ دنیا جو خدا سے دور چلی گئی اور خدا انسانوں سے دور ہوا، جدائی ہوئی، اس جدائی کو تجسم کے وسیلے سے خدا نے پر کیا اور اپنے بیٹے کو دوبارہ سے انسانوں کے درمیان بھیج دیا. اور آج بھی ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، یسوع کا یہ وعدہ ہے، دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. یعنی یسوع کے آنے کے وسیلے سے، تجسم کے وسیلے سے یہ ممکن ہوا کہ خدا دوبارہ سے اپنے لوگوں کے درمیان ہے، کلیسیا کے درمیان ہے، جن کو اس نے چنا ہے، جن کو اس نے خریدا ہے، جن کو اس نے اپنے بیٹے یسوع کے خون سے اپنا بنا لیا ہے، وہ ان کے درمیان ہے. یہ تجسم کی برکت ہے. اس کے بعد تجسم کی ایک اور برکت کو ہم دیکھتے ہیں کہ تجسم کے ذریعے سے خدا نے اپنے فضل کو ظاہر کیا. خدا کا فضل، خدا کی محبت اس تجسم کے وسیلے سے ممکن ہوتی ہے. خدا کی محبت، خدا کا فضل کیا ہے؟ انسانوں کی مخلصی، ریڈیمپشن. انکارنیشن برنگز ریڈیمپشن فار دس ورلڈ. تجسم اس دنیا کے لیے مخلصی کا پیغام لے کر آیا ہے، نجات کا پیغام ہے. اور اس میں یوحنا نے بڑا واضح کیا، اس نے کہا کہ وہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے خدا سے پیدا ہوئے ہیں. This happened with incarnation، کہ وہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں، خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. ہمیں یہ حق بخش دیا کہ ہم خدا کے فرزند بن جائیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں. میں اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. کس طرح سے؟ ہم اپنی کوشش سے نہیں بن سکتے، ہم اپنی پاکیزگی سے، اپنے کاموں سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں بن سکتے. خدا کے فرزند ہونے کا حق یسوع کے وسیلے سے ممکن ہوا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا جو جسم اختیار کر کے آیا ہے، جتنوں نے یسوع کو قبول کیا، صرف وہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہی خدا سے پیدا ہوئے ہیں. وہ جسم سے اور خون سے، انسان کے ارادے سے نہیں بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. ہم میں سے ہر ایک یہاں پر انسان سے پیدا ہوا ہے، خواہش سے، جسم کی خواہش سے، ارادے سے پیدا ہوا ہے. لیکن ہمیں ایک اور نیا تجربہ، نئی پیدائش، نئی زندگی، ایک نئے فضل کا تجربہ یسوع کے وسیلے سے ملا ہے کہ ہم نہ صرف انسانوں کے ارادے سے پیدا ہوئے ہیں، نہ صرف ہم انسانوں کے اولاد ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بھی ہیں. مجھے اور آپ کو خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا جس کے ہم قابل نہیں تھے. یہ حق بخشا گیا ہے، یہ فیور ہوئی ہے، انمیرٹڈ فیور، جس کے ہم قابل، جو ہمارا میرٹ نہیں ہے، خدا نے وہ ہمیں دیا ہے. جس میرٹ میں ہم پورے نہیں اترتے وہ ہمیں ملا ہے. میرٹ کے لفظ کو آپ میں سے ہر ایک شخص جانتا ہے کہ میرٹ کیا ہے. جب کسی کام کے لیے، کسی جاب کے لیے، کسی داخلے کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے تو اگر ہم اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میرٹ کو پورا نہیں کر رہے. میرے بھائی ہم جانتے ہیں میرٹ کی اہمیت کو. جب داخلے کے لیے لوگ آتے ہیں تو میرٹ کیا اہمیت ہے میرٹ کی، کہ ہاؤ امپورٹنٹ میرٹ از ان آور لائف. انسان کی زندگی میں میرٹ کتنا اہم ہے جس کے ہم قابل نہیں. خدا کے فرزند بننے کے قابل ہونا، لیکن
खुदावंद का यह फजल है जो यीशु में जाहिर हुआ। तजस्सुम ने खुदा के फजल को, उसकी मोहब्बत को जाहिर किया कि वो गुनाहगार इंसानों को अपने बेटे और बेटियां बना लेता है। मुझे और आपको उसने अपने बेटे और बेटियां बनाए और एक तजस्सुम के वसीले से। उसके बाद तजस्सुम जो है, इसकी एक और बात ये भी है कि ये जिंदगी देता है। इनकारनेशन ब्रिंग्स लाइफ, इनकारनेशन ब्रिंग्स लाइट। जिंदगी है, रोशनी है, नूर है। नूर जिंदगी की अलामत है। आपको पता है रोशनी की अहमियत क्या है? लाइट क्या अहमियत रखती है जिंदगी में? जिंदगी में रोशनी ना हो, हमारे इर्द गिर्द रोशनी ना हो तो लाइफ कायम नहीं रह सकती। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा ने जिंदगी को इंसानों पर जाहिर किया है, लेकिन इस तजस्सुम को हमें अपनी जिंदगी में समझने की जरूरत। ये यूहन्ना की इंजील के 6 बाब में हम जिंदगी के हवाले से देखते हैं। यूहन्ना की इंजील और उसका 6 बाब और उसकी 40वीं आयत। ये यूहन्ना की इंजील का 6 बाब जो है, ये हर शायर बानी पर मैं आपके सामने तिलावत कर रहा हूँ। और इसकी 40वीं आयत में लिखा है, मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। यानी जो बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए। ये तजस्सुम के वसीले से खुदा ने तजस्सुम अख्तियार किया, जिस्म अख्तियार किया। यीशु इस दुनिया में आया और जो कोई बेटे को देख लेता है वो जिंदगी पाता है। उसके पास जिंदगी है। खुदा के कलाम लेकर जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। मैं एक खातून को जानता हूँ, बहुत बीमार हो गई, बहुत बीमार हुई, वेंटिलेटर पे थी, बड़ी क्रिटिकल थी। खुदा उन्होंने शिफा दी। तो उन्होंने, मैं उनसे मिला, बातचीत कर रहे थे उस तजर्बे के बारे में जिसमें से वो गुजरी। तो उन्होंने कहा कि जब मैं बीमार थी और बड़ी तकलीफ में थी तो मैं सिर्फ यही आयत बोलती थी कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। और कहती है इसी आयत ने मुझे इतना मजबूत किया, इतना मजबूत किया कि मैं इस बीमारी से लड़ सकी। और यहाँ पर भी हम देखते हैं तजस्सुम इस दुनिया में जिंदगी लाया है। तजस्सुम इस दुनिया में नूर को लाया और इसने कहा दुनिया का नूर मैं। और यहाँ पर यूहन्ना ने पहले बाब में कहा हकीकी नूर। यीशु ने से कहा हकीकी नूर जो हर आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। यूहन्ना, मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले खुदावंद यीशु मसीह को हकीकी नूर कराते थे। बड़ी लाइट्स हम देखते हैं इस दुनिया में, लाइट्स यहाँ पर भी मौजूद हैं, लेकिन ये सारी किसी न किसी कनेक्शन से चल रही है। लेकिन हकीकी नूर खुदा है और हकीकी नूर यीशु मसीह में इस दुनिया में आया ताकि वो दुनिया में इंसानों को रोशन करे, दुनिया में इंसानों को तारीकी से रोशनी में ले आए। इसलिए मेरे अजीजों, आज ये तजस्सुम जो है वो हम में से हर एक के लिए भी चैलेंज लेकर आता है कि क्या हमने इसे कबूल किया है? ये सिर्फ क्रिसमस मना रहे हैं, साल से क्रिसमस मना रहे हैं। क्रिसमस की सेलिब्रेशंस हैं, बहुत सेलिब्रेशंस हैं, लाइटिंग है रात में, दिन में पार्टीज हैं, शॉपिंग्स हैं, सारे खुशियां हैं। लेकिन इन सब में इस क्रिसमस की बुनियाद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना है, तजस्सुम का वजूद वकूफ़ पज़ीर होना है, खुदा का इस दुनिया में आना है। और जो इस तजस्सुम को कबूल करता है, जो यीशु को कबूल करता है, वो जिंदगी पाता है, उसके पास जिंदगी। जब हम खुश होते हैं तो हम कहते हैं लाइफ, जब हम हंसते मुस्कुराते हैं तो कहते हैं कि हमें लाइफ है। लेकिन हकीकी जिंदगी तजस्सुम को, यीशु मसीह को कबूल करना है। आज का क्रिसमस मेरे और आपके लिए चैलेंज लाता है कि अगर हमने उसे कबूल नहीं किया, और यहाँ पे यूहन्ना ने कहा कि वो अपने घर में आया
और अपनों ने उसे कबूल ना किया, रद्द किया। अगर हमने यीशु को रद्द किया हुआ है, अपने निजात दहिंदा को रद्द किया हुआ है, तो आज हमें दोबारा से अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। यीशु को कबूल करने की जरूरत है। जो उसे कबूल करता है वो जिंदगी पाता है। जो उसे कबूल करता है वो उसका बेटा है, उसकी बेटी है, वो खुदा से पैदा हुआ है, वो खुदा का बेटा बेटी है। इसलिए मेरे बहनों और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आए यीशु को कबूल करें। अपनी जिंदगी में यीशु को रद्द न करें, तजस्सुम को रद्द न करें। खुदा ने जिस्म अख्तियार किया, यीशु इस दुनिया में आया, निजात दहिंदा इस दुनिया में आया, उसको कबूल करके आए, जिंदगी की बरकत पाएं, मखलसी की बरकत पाएं, खुदा को देखने की, उसको जानने की बरकत पाएं, उसकी मोहब्बत को तजुर्बा करने की बरकत पाएं, ताकि वो हमारे दरमियान रहे, हमारे घरानों के दरमियान रहे, हमारी कलीसिया के दरमियान रहे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और डॉक्टर कैसर जूलियस साहब इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। आइए हम शुक्रगुजारी की हालत में खुदावंद के हुजूर अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। ऐ मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, हम आज क्रिसमस के मौके पर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा इंसान बनकर इस दुनिया में एक बड़े मिशन को लेकर आया, ताकि दुनिया उसके वसीले से नजात पाए, जिंदगी पाए। और उसने अपनी जान सलीब पर देकर इस जिंदगी को, इस नजात को मुमकिन किया हर एक इंसान के लिए। बख्श दे खुदावंद के 2022 का क्रिसमस जितनों भी ने भी तेरे कलाम को सुना है, उनके लिए ज़िंदगी, नजात और बरकत का बायस हो। लेकिन इसके साथ खुदावंद ये कलाम हमें चैलेंज भी देता है कि हम इस ज़िंदगी की बरकत को, इस नजात की बरकत को सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें। बख्श दे कि ये हमारी ज़िंदगी के वसीले बहुत सारे लोगों के लिए इसको पहचानने का वसीला बने। हम सबको खुदावंद तू इस तरह से ज़िंदगी बसर करने का फजल बख्श कि लोग हमारी ज़िंदगियों के वसीले, हमारे चाल चलन, हमारे कैरेक्टर, हमारे बोल चाल से उस नजात को, उस ज़िंदगी को, उस बरकत को पहचान सकें, उस नूर को जो हमारी ज़िंदगियों से मुनक्स होकर बहुत सारी तारीख ज़िंदगियों को मुनव्वर कर सके। तेरे खादिम के लिए, उसकी उस खुदावंद पैशन के लिए कि तेरे कलाम को आज इस ख़ास मुबारक मौका पर रखा गया है, हम सब के लिए। और खुदावंद ये कलाम हम सब के लिए बाबरकत बना, और तेरे खादिम के लिए भी खुदावंद हम बरकत की दुआ करते हैं। बख्श दे ये क्रिसमस हम सब के लिए इसी बरकत को खुदावंद लाने का वसीला बने। मसीह खुदावंद के मुबारक और कद्दूस नाम के वसीले से ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 217 गाएंगे। गीत नंबर 217, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। इसके साथ ही एक और गीत भी अगर इसके बाद आप गाना चाहें, 458, वो भी साथ ही गा लीजिएगा। इसके साथ ही हम अपने हदिये भी खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे। गीत नंबर 217, 217।
तुझको काबिल खुदा बादशाहों का यीशु तू बादशाह सारी कौमें मानेगी तुझको काबिल खुदा बादशाही यीशु तेरे लिए है 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 हालेलुया हालेलुया पादरी साहब की तरफ से मुझे ये कहा गया कि मैं हदिये के लिए खुदा के हजूर दुआ करूँ। इससे पेशतर कि हम खुदा के हजूर दुआ में झुकें, चंद एक बातें याद दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि मेरे और मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको क्रिसमस मुबारक हो। और इसके साथ ये बात भी याद दिलाना चाहता हूँ कि ये इबादत हमारा एक ऐसा तरीका है कि हम अपने खुदा से मिलने के लिए आए हैं। खुदा उनका शुक्र हो कि हम अपने खुदा को इस इबादत के वसीला मिल पाए। और दूसरी बड़ी बात कि हम जब दुआ करते हैं तो इससे भी हम खुदा को मिलते हैं और खुदा की मर्जी को जानते हुए उसके हुजूर उसका शुक्र अदा करते हैं। और ख़ासकर हदिया भी एक ऐसा तरीका है कि हम अपने खुदा को मिलते हैं। तो इन बातों को याद रखते हुए मैं चाहता हूं कि हम खुदा के हुजूर खुशी और शुक्रगुजारी की रूह में झुकें और दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे हुजूर झुके हैं। तेरा शुक्र करते हैं आज का इस खास खुशियों भरे दिन के लिए जो तेरे बेटे यीशु की आमद का दिन है, जो तेरे बेटे यीशु का जन्मदिन है। और तमाम दुनिया के मसीही ईमानदार इस बड़ी खुशी को मनाते हुए इस आसमानी खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाते हैं और हम भी उनका हिस्सा होते हुए खुशी और शुक्रगुजारी के साथ तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने आज तक हम सबको जिंदा रखा है और इस जिंदगी में खुदावंद आज का दिन दिया कि हम 2022 के साल को पूरा कर पाए। और साल के इख्तिताम पर 25 दिसंबर को आज के दिन हम खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन, उसकी आमद का दिन मनाते हैं, उसके तजस्सुम का दिन मनाते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो और इससे हम खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम मुतवक्को हैं कि हम इस साल को अपनी ज़िंदगी में अलविदा करेंगे और नए साल को अपनी ज़िंदगी में कबूल करके तेरी शुक्रगुजारी करेंगे। और बिलखसूस खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि आज की सारी इबादत के लिए तेरे बंदा के वसीला जो तेरा कलाम लोगों के सामने पेश किया गया, इसके लिए भी हम तेरा शुक्र करते हैं। जब हम कलाम को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हम तुझसे मिलते हैं। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। और खुदावंद तेरे लोगों ने अपने हदियाजात भी तेरे हुजूर पेश किए हैं इस ईमान के साथ शुक्रगुजारी की रूह में कि तू जिंदा खुदा है और तूने सब कुछ हमें दिया है और तूने हमें ज़िंदगी बख्शी है। और ख़ासकर मसीही ईमान जिसके वसीला हम खुदावंद तेरे हुजूर आए हैं और अपने हदियों के साथ तेरे साथ गहरी रफ़ाकत रखते हुए तेरा शुक्र अदा करते हैं। शुक्रगुजारी और खुशी की रूह में खुदावंद हम सब तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं और इन हदियाजात को तेरे हुजूर पेश करते हैं, मिन्नत करते हैं कि तू इनको कबूल कर और अपने सारे लोगों को बड़ी बरकत दे। तेरा रहम, तेरा फजल तेरे लोगों के साथ रहे। हमारी दुआ को सुन। ये सब कुछ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो।
हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज में माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। तशरीफ रखें। मेरी तरफ से और सेशन की तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से और प्रेस्बिटेरियन चर्च एफसी कॉलेज की सारी ज़ैली तंजीमों की तरफ से आप सबको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी शुक्रिया। अभी हम एक गीत गाएंगे और सबसे पहले मैं बाहर जाऊंगा और उसके बाद आप लोग सभी जो हैं, दोनों दरवाजे मौजूद हैं, दोनों खुले होंगे, आप दोनों तरफ से बाहर निकल सकते हैं।